Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And dear students, today we are doing F block elements. These are inner transition elements of class plus 2. So first of all, what are F block elements? F block elements है क्या? In the first video of this chapter, I have told you about the F block elements and you have also studied it in plus 1 class also. So what are F block elements? Those elements in which last electron will enter into F atomic orbital of anti-penultimate shell are called F block elements. So F block elements हैं क्या? Those elements in which last electron will enter into the F atomic orbital of anti-penultimate shell. These are called F block elements, and it consists of two series. The first series is lanthanide series. It is having the 14 elements from atomic number 58 to 71. And the second is the second series is actinide series. This is also having 14 elements from atomic number 90 to 103. अब यदि हम बात करें 58 से 71 कौन कौन से एलिमेंट हैं? 58 है सी क्या है? सीरियम से लेके 71 है एलयू इज ल्यूटिटियम. सी क्या है? सीरियम. एलयू क्या है? ल्यूटिटियम. और 90 से 103 की बात करें तो वहां कौन से हैं हमारे पास? 90 है टीएच थोरियम से लेके हमारे पास 103 है एलआर है लॉरेंशियम. आपको ध्यान रखना है कि लैंथेनाइड सीरीज में टोटल 14 एलिमेंट्स हैं. एटॉमिक नंबर 58 से 71. 58 है सीरियम का और 71 है ल्यूटिटियम, तो सीरियम से लेके ल्यूटिटियम तक. और उसके एक्टिनाइड सीरीज में भी 14 एलिमेंट्स हैं. 90 टू 103 एटॉमिक नंबर. 90 है टीएच थोरियम से एलआर लॉरेंशियम 103. Now, the general outermost shell electronic configuration of F block elements क्या होते हैं? This is n-2 F1 से लेके 14, n-1 D 0 to 1 and S2. Here n-2 it represent anti-penultimate shell, n-1 it represent penultimate shell, and n represent outermost shell. Now lanthanides and their properties. So what are lanthanoids? The 14 elements after La क्या है? 57. lanthanum, that is from atomic number 58 to 71, in which 4f atomic orbitals are progressively filled are called lanthanoids. तो जिन एलिमेंट्स में हमारे पास 4f atomic orbital जो हैं, they are progressive filled. These are called lanthanoids. And
This series is called lanthanide series. इस सीरीज को हम बोलते हैं lanthanide सीरीज और इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? lanthanoids. Next is properties. अब lanthanoids की properties. Properties of lanthanoids. फर्स्ट है जो हमारे पास, आप देखते हैं कि इनके अंदर क्या है, 4f एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिव, और हम ये भी जानते हैं कि जनरल कॉन्फिगरेशन क्या है हमारे पास, n-2f 1 to 14, n-1d 0 से लेके 1, ns2। तो यदि यहां मैं n-2 की जगह 4 रखता हूं, तो यदि n-2 4 रख दिया तो n वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। तो इसका मतलब यह n-2 4 हो जाएगा, तो 4f 1 से लेके 14, n वैल्यू 6 है तो 6 - 1 क्या हो जाएगा? 5d 0 से लेके 1, और n वैल्यू 6 है तो 6s2। सो क्या होगा यहां पर lanthanoids में? We know 4f atomic orbitals are progressively filled, so their general outermost shell electronic configuration is 4f 1 to 14, 5d 0 to 1, 6s2. This is the electronic configuration of lanthanoids. In the first element 4f1 होगा और लास्ट एलिमेंट 71 वाले में 4f14 होगा. That's why 4f atomic orbitals are progressively filled. Second point, they are also called inner transition elements. इन्हें इनर ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं आउटरमोस्ट शेल, पेनल्टीमेट शेल, और पेनल्टीमेट शेल से भी अंदर जाएं तो कौन सा है? एंटी पेनल्टीमेट शेल. उसका 4f एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो इसमें लगातार भरा रहा है. दे आर कॉल्ड, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिकॉज inner 4f atomic orbitals are progressively filled. Next is, they are also called rare earth metals. Question is, why they are called rare earth metals? Because they are rarely found in the earth crust. Next is, the most common oxidation state of lanthanoids is +3, but they also show +2 and +4 oxidation state. मेनली कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो इनकी क्या है? +3 है, बट उसके अलावा +2 एंड +4 वो भी शो करते हैं. नेक्स्ट इज प्रोमीथियम, symbol is PM, atomic number 61. Promethium, this is the only lanthanoid which is radioactive. प्रोमीथियम ये एक ऐसा लैंथेनोइड है जो रेडियोएक्टिव है, बाकी सभी कैसे हैं? नॉर्मल एलिमेंट्स हैं. नेक्स्ट इज
most of the lanthanoids are colored. जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स कलर थे, वो किस वजह से थे? अनपेड इलेक्ट्रॉन और डी ट्रांजिशन। तो ऐसे ही यहां पर है, मोस्ट ऑफ द लैंथेनोइड्स आर कलर्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनमें क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एंड दे कैन अंडरगो एफ ट्रांजिशंस। ध्यान रखिएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डी ट्रांजिशन है, यहां कौन सी है? एफ ट्रांजिशंस है। नेक्स्ट इज दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब जो लैंथेनोइड्स है वो भी कैसे हैं? पैरामैग्नेटिक हैं, जस्ट लाइक ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो इस वजह से ये भी क्या है? दीज आर आल्सो पैरामैग्नेटिक। Next is they react with non-metals to form corresponding compounds. नॉन मेटल साथ मिलकर क्या बनाएंगे? कंपाउंड्स बनाएंगे। नेक्स्ट है देयर नाइट्रेट्स, क्लोराइड्स एंड एसिटेट्स are soluble in water, while their carbonates, oxalates, hydroxides, fluorides, sulfates, phosphate, etc. are insoluble in water. इनके जो नाइट्रेट्स हैं, क्लोराइड और एसिटेट हैं, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, while carbonate, oxalate, hydroxide, fluoride, sulfate, phosphate, they are insoluble in water, and this character is related with the alkaline earth metal. So in this way, they resemble with alkaline earth metals. अल्केलाइन अर्थ मेटल कौन से हैं? ग्रुप 2। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में टोटल 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो ये प्रॉपर्टी इनकी ग्रुप 2 से मैच करती है। और आप जानते भी हैं ग्रुप 2 की जनरल कॉन्फिगरेशन क्या थी हमारे पास? NH2। और आप देख भी रहे हैं कि इनमें भी क्या है? NH2 है। इसलिए इनके कैरेक्टर्स जो हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल से मैच करेंगे। नेक्स्ट इज दे शो lengthened contraction। lengthened contraction है क्या हमारे पास? The steady decrease in atomic size as we move from atomic number 58 to 71 in the lengthened series. This is called lengthened contraction, और इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। lengthened contraction, actinide contraction. So they show lengthened contraction, and these all are the properties of lanthanoids. Next is actinoids and their properties. So what are actinoids? The 14 elements
आफ्टर एक्टिनियम, एक्टिनियम है एटॉमिक नंबर 89, तो उसके बाद ये 14 क्या है, दैट इज फ्रॉम एटॉमिक नंबर 90 से लेके 103, इन विच 5f atomic orbitals are progressively filled are called actinoids, and this series is called actinoid series. So actinium के बाद 14 एलिमेंट्स, एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर 89 है, 89 के बाद यानी कि 90 से लेके 103, उन सभी एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एक्टिनॉइड्स, और उस सीरीज को बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज। और कंडीशन क्या है इनमें, 5f एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फील्ड, यानी कि 5f 1 से लेके 14। अब है प्रॉपर्टीज। फर्स्ट पॉइंट, देयर जनरल outermost shell electronic configuration is, अब n-2 f1 to 14 में n-2 के लिए यदि 5 पुटअप करेंगे तो n वैल्यू क्या आएगी 7। सो हमारे पास क्या होगा 5f 1 से लेके 14, साथ में होगा 6d 0 से लेके 1 7s2। सो ये है इसकी outermost shell electronic configuration। सेकंड पॉइंट, लैंथेन नोड्स में आपने क्या पढ़ा था, ओनली वन एलिमेंट प्रोमीथियम जो था 61 एटॉमिक नंबर, दैट इज रेडियोएक्टिव, जबकि यहां क्या है, ऑल ऑफ द एलिमेंट्स, ऑल ऑफ दिस एलिमेंट्स आर रेडियोएक्टिव। यहां सभी एलिमेंट्स रेडियोएक्टिव हैं। नेक्स्ट वन, द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92, तो 90 से लेके 103 है तो 92 बीच में आएगा। द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, उनका एक स्पेशल नेम है, दीज आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स एंड दीज आर द मैन मेड एलिमेंट्स। Next, the most common oxidation state is +3। इनमें भी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है, जस्ट लाइक लैंथेनोइड्स, बट they also show +2, +4, +5, +6 and +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। लैंथेनोइड +3 के अलावा क्या शो करते थे, +2 and +4, जबकि +2, +4, +5, +6, +7 सभी शो करते हैं। दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि इनके अंदर भी क्या है हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट, they also form colored ions due to FF transitions। Next is they form pi bonded complexes। Next time, their compounds are sufficiently basic। इनके कंपाउंड्स कैसे हैं, बेसिक है, बेसिक रेटर ज्यादा है। द लास्ट पॉइंट इज लैंथेनोइड्स क्या शो करते हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, सेम वे से दे शो actinide contraction।
लैंथेनाइड सीरीज में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनोइड सीरीज में एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन. Now we are doing some electronic configuration of some important lanthanoids and actinoids. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन देख रहे हैं हम सीरियम की, एटॉम नंबर 58 है. सो अफ्ब्यूज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन? 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d10 4p6, 5s2 4d10 5p6. यहां तक 54 हो गया है हमारे पास. उसके बाद 6s2 4f1 5d1. सो ये है कॉन्फिगरेशन किसकी है? सीरियम की. अब हम जानते हैं 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d10 4p6, 5s2 4d10 5p6. यहां तक जो कॉन्फिगरेशन है वो किसकी है? जिनोन की. सो सीरियम की कॉन्फिगरेशन ऐसे भी लिखी जा सकती है. हम यहां तक लेते हैं जिनोन स्क्वायर ब्रैकेट में. उसके बाद क्या है? 6s2 4f1 5d1. सो दिस इज द कॉन्फिगरेशन ऑफ सीरियम. अब ये है हमारे पास अफ्ब्यू प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग. और यदि शेल वाइज है तो ये जिनोन है. सबसे पहले 4 शेल 4f1, देन 5d1, देन 6s2. ये हमारे पास शेल वाइज है. किसी कॉन्फिगरेशन? सीरियम की. अब यह क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सीरियम शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. सीरियम जो है इट प्रेफरेबली शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. कैसे? सीरियम शोज सीरियम शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. अब आप देख रहे हैं +4 कैसे शो करेगा. इफ यू डू लूज 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4f, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 5d एंड 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 6s, देन सीरियम की कॉन्फिगरेशन कैसी हो जाएगी? जिनोन जैसी, यानी कि नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर लेगा. सो सीरियम शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज इन Ce+4 जो है द कॉन्फिगरेशन इज like that of xenon, that is the noble gas. उस समय सीरियम की कॉन्फिगरेशन कैसे हो जाती है? जिनोन जैसी हो जाती है. इसी वजह से सीरियम क्या है? इट प्रेफरेबली शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. ये क्वेश्चन सीरियम से रिलेटेड आता है. अब सेकंड कॉन्फिगरेशन हम देख रहे हैं. यहां हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फिगरेशन करने जा रहे हैं. उसके बाद पीएम प्रोमेथियम 61 है. अब इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन क्या होगी? सबसे पहले जिनोन 54 आ गया हमारे पास. उसके बाद यहां है 4f5 5d0 6s2. तो ये कॉन्फिगरेशन आपको लर्न होनी चाहिए. उसके बाद हम ले रहे हैं EU. EU जो है दिस इज यूरोपियम. एटॉमिक नंबर है 64. EU क्या है? यूरोपियम. 64 है इसका एटॉमिक नंबर. तो जिनोन है हमारे पास यहां. इसके अलावा है हमारे पास यहां सॉरी 63 है EU का. Xenon 4f7 5d0 6s2. This is the electron configuration of यूरोपियम. क्वेश्चन आता है EU shows +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. रीजन क्या है? बिकॉज EU+2 जब हम करेंगे इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन. और 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लूज होंगे? आप देख रहे हैं 6s2 से. तो उसके बाद क्या बच जाएगा? Xenon 4f7. और 4f7 कैसे कॉन्फिगरेशन है? एग्जैक्टली हाफ फील्ड. तो आप बताएंगे EU shows +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज EU+2 हैज एग्जैक्टली हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन. एक हमारे पास आता है
जीडी। जीडी का नेम है हमारे पास गैडोलिनियम। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ गैडोलिनियम क्या होगी? ज़ीनॉन 4f7 उसके बाद है हमारे पास 5d1 6s2 और एक और है सबसे इंपॉर्टेंट YB। YB क्या है? इट्रबियम। इट्रबियम स्पेलिंग में दोबारा दे देता हूं, YTTERBIUM। इसका इसका एटॉमिक नंबर है हमारे पास 70। और जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहां भी ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, तो क्या है? ज़ीनॉन 4f14 5d0 6s2। सो यहां भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, YB shows +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे सीरियम +4 शो करता है, EU +2 शो करता है, ऐसे YB भी क्या है? +2 शो करता है। +2 क्यों शो करे? +2 मीन्स लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। और आप देख रहे हैं आउटरमोस्ट शेल कौन सा है? 6s। सो व्हेनेवर इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन, तब कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाएगी? ज़ीनॉन 4f14। और 4f14 कैसी कॉन्फ़िगरेशन है? फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। सो YB shows +2 oxidation state because YB +2 has fully filled इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो ये सभी क्या थे? दीज आर द सम इंपॉर्टेंट लैंथेनॉइड्स। और आपने वहां पढ़ा भी था, लैंथेनॉइड्स में मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3, बट दे आल्सो शो +2 एंड +4। तो आपने देखा है EU और YB +2 शो कर रहे हैं और सीरियम क्या शो कर रहा है? +4। और वो सभी कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं? एटॉमिक नंबर 58 to 71 के बीच में से हैं, यानी कि लैंथेनॉइड्स हैं। सो ये हमारे पास हैं सम इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस। ये लैंथेनॉइड्स की हैं। अब एक दो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एक्टिनॉइड्स की बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक्टिनॉइड्स में सबसे इंपॉर्टेंट है यूरेनियम। नेक्स्ट इज यूरेनियम, एटॉमिक नंबर 92 है। सो इसके ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? ऑफब्यू प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6। यहां तक लिख दो या Rn रेडॉन लिख सकते हैं इसके बजाय। उसके बाद क्या है हमारे पास? यहां 92 वाले में हमारे पास है (7s2). उसके बाद यहां है 5f3 6d1। 7s2 5f3 6d1। सो इसे हम ऐसे ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। 6p6 कंप्लीट लिख लें या इसकी जगह लिख दे Rn। Rn क्या है? रेडॉन, नोबल गैस है ये। इसका एटॉमिक नंबर 86 है। उसके शेल वाइज देखें तो पहले 5f3 देन 6d1 देन 7s2। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूरेनियम। इसमें एक लास्ट कर लीजिएगा, जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है LR। LR क्या है? लारेंशियम। लारेंशियम के कॉन्फ़िगरेशन जो एक्टिनाइड सीरीज का सबसे लास्ट एलिमेंट है, लारेंशियम। लारेंशियम का एटॉमिक नंबर 103 है। सो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यहां क्या होगी? RF रदरफोर्ड, सॉरी RN, नॉट RF, रेडॉन। उसके बाद आएगा 5f14
उसके बाद होगा 6d1 and last is the 7s2. So this is the electronic configuration of some important lanthanoids and actinoids. And this is all about properties of lanthanoids and actinoids. Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.